हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। आज हम बात करेंगे वर्कशीट 68 की, जो कि 16 दिसंबर के लिए जारी की गई है। ये क्लास 10th की साइंस सब्जेक्ट से रिलेटेड वर्कशीट है। यहाँ बच्चे अपना नाम लिखेंगे और यहाँ अपने क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। बच्चों, हमारा चैप्टर चल रहा है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, एंड टिल नाउ वी हैव बीन स्टडीड अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, and today we are going to study about reproduction in human beings, that is male reproductive system and female reproductive system। तो बच्चों, चलिए देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं कि आज का आपका जो चैप्टर है आपको क्या बताना चाहता है और आपकी वर्कशीट में आपके लिए क्या नया खास है। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स। In human beings during adolescence, many morphological and physiological changes occur in the body of both male and female. The body of male and female develops secondary sexual character, which are brought about by hormones secreted by endocrine gland. As the rate of general body growth begins to slow down, reproductive tissue begins to mature. This period during adolescence is called puberty. The male and female gamete production begins in respective reproductive organs, testes and ovary during puberty. During reproductive age of male, which lasts his lifetime, sperms or male gametes are produced. However, in female, the onset of menstruation cycle of menarche signal production of female gametes ova. The production of ova stops in female when she reaches the age of 45 to 50 years. At this stage, the menstruation cycle stops and is referred to as menopause. तो बच्चों, अब सबसे पहले पढ़ते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। चलो, ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम है, इसे ध्यान रखिएगा बच्चों। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के डायग्राम को कई बार आपसे पूछा जाता है आपके एग्जाम्स में, और ये 5 नंबर का डायग्राम के बारे में पूछा जाता है। करना ही होता है, आपको ये डायग्राम बनाना होता है, प्लस डायग्राम के साथ साथ कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में बताना होता है कि मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में काम कैसे होता है। अगर आप इन चीज़ों को बता देते हैं तो आपको 4 से 5 नंबर पूरे लगभग मिल जाते हैं बच्चों। तो चलिए शुरू करते हैं। द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पोर्शन विच प्रोड्यूस द germ cells and other portion that deliver the germ cells to the site of fertilization. The formation of germ cells or sperms take place in the testes. These are located outside the abdominal cavity in scrotum because sperm formation require a lower temperature than the normal body temperature. The role of testes is to secrete a hormone called testosterone. In addition to regulating the formation of sperms, testosterone brings about changes in appearance seen in the boys at the time of puberty. The sperm formed are delivered through the vas deferens, which unite with the tube coming from the urinary bladder. The urethra thus forms a common passage for both the sperm and urine. Along the path of the vas deferens, glands like the prostate and the seminal vesicles add their secretion so that sperms are now in a fluid which make their transport easier, and this fluid also provides nutrition. The sperms are teeny bodies that consist of mainly genetic material and a long tail that helps them to move towards the female germ cells. तो बच्चों, ये तो बात हुई मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। अब बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। The female germ cells or eggs are made in the ovaries. Ovaries are also responsible for the production of some hormones like estrogen and progesterone. When a girl is born, the ovaries already contain thousands of immature eggs. On reaching puberty, some of these start maturing. One egg is produced every month by one of the ovaries. The egg is carried from the ovary to the womb through a thin oviduct or fallopian tubules. The two oviducts unite into an elastic bag-like structure known as uterus. The uterus opens into the vagina through the cervix. The sperms enter through the vaginal passage and travel upwards and reach the oviduct, where they may encounter the egg. The fertilized egg or zygote gets implanted in the lining of the uterus and starts dividing.
The mother body is designed to undertake the development of the child, hence the uterus prepares itself. The lining of the uterus thickens and it's richly supplied with blood to nourish the growing embryo. The embryo gets nutrition from the mother's blood with the help of placenta, a disc which is embedded in the uterine wall. It contains villi on the embryo sides of the tissue. On the mother side are blood spaces surrounding the villi, providing a large surface area for glucose and oxygen to pass from the mother to the embryo, and the waste substances generated by developing embryo is removed by transferring them into the mother's blood through the placenta। बच्चों, तो ये तो बात हुई बच्चों किसकी, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। अब जरा क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, राइट द फंक्शन परफॉर्म्ड बाय। तो ये जो चीज़ें दी गई हैं इनके फंक्शंस आपको बताने हैं। सबसे पहला है टेस्टिस। तो टेस्टिस का क्या फंक्शन है बच्चों? द फॉर्मेशन ऑफ जर्म सेल और स्पर्म्स टेक्स प्लेस इन द टेस्टिस, यानी कि स्पर्म के फॉर्मेशन में हेल्प करती है टेस्टिस बच्चों। अब है वास डिफरेंस, ये क्या करती है? The sperms formed are delivered through the vas deferens, which unites with the tube coming from the urinary bladder. यानी कि vas deferens का काम क्या है? स्पर्म की जो स्पर्म बने हैं उनकी डिलीवरी करना बच्चों। अगला है ओवरी। ओवरी क्या करती है बच्चों? ओवरी का पहला काम क्या है बच्चों? एग का प्रोडक्शन करना। पहली चीज एग और जर्म सेल का प्रोडक्शन करना। दूसरी चीज क्या है बच्चों? हॉर्मोन्स लाइक ऑस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, इन दोनों का प्रोडक्शन भी ओवरीज के द्वारा ही होता है बच्चों। चलिए अगला देखते हैं। अगला है ओविडक्ट। तो ओविडक्ट क्या करता है बच्चों? द एग इज कैरिड फ्रॉम द ओवरी टू द वूम थ्रू ए थिन ओविडक्ट और फैलोपियन ट्यूब्यूल्स। यानी कि ओविडक्ट क्या करता है? एग को ओवरी से वूम तक ले जाने की प्रक्रिया में सहायता करता है। फिर है यूथरस। यूथरस क्या करता है बच्चों? टू ओविडक्ट यूनाइट इनटू इलास्टिक बैग लाइक स्ट्रक्चर नोन एज यूथरस। यानी कि दो ओविडक्ट यूनाइट करके एक इलास्टिक बैग लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे यूथरस कहते हैं। और आखिरी है प्लेसेंटा बच्चों। तो प्लेसेंटा क्या है? द एम्ब्रॉय गेट न्यूट्रिशन फ्रॉम द मदर्स ब्लड विद द हेल्प ऑफ प्लेसेंटा, ए डिस्क व्हिच इज एम्बेडेड इन द यूथरिन वॉल। इट कंटेन्स विलाई ऑन द एम्ब्रॉय साइड ऑफ द टिश्यू। यानी प्लेसेंटा क्या है? एक स्ट्रक्चर है, डिस्क लाइक एम्बेडेड स्ट्रक्चर है जो कि यूथराइन वॉल पर टंगा होता है और ये एम्ब्रॉय को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है मदर के ब्लड से बच्चों। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाई आर टेस्टेड लोकेटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। ये आउटसाइड क्यों लोकेटेड होती हैं? तो इसका कारण क्या है? दीज आर लोकेटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी इन द स्क्रोटम बिकॉज स्पर्म फॉर्मेशन रिक्वायर ए लोअर टेम्परेचर देन दी नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। यानी कि नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से भी कम टेम्परेचर चाहिए इस फॉर्मेशन के लिए, इसलिए ये बाहर की साइड में होती हैं बच्चों। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट चेंजेस आर अब्जॉर्ब्ड इन द यूथरस सब्सिक्वेंट टू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ यंग एम्ब्रॉय। यानी कि यंग एम्ब्रॉय जब इम्प्लीमेंट होता है तो क्या चेंजेस आते हैं? तो ये चेंजेस हैं, द लाइनिंग ऑफ द यूथरस थिकन्स एंड इज रिचली सप्लाइड विद द ब्लड टू नरिश द ग्रोइंग एम्ब्रॉय। ठीक है, ये चेंजेस आते हैं। यूथरस की वाल ठीक हो जाती है और उसकी सप्लाई, ब्लड की सप्लाई बढ़ जाती है। अगला है, नेम द पार्ट इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम वेयर फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस। तो फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस होता है यूथरस में बच्चों। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये होगी आपकी वर्कशीट कंप्लीट और वीडियो भी। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।